हमारा ग्रुप नंबर 1 है, जिसके प्रेजेंटेशन में ग्रुप में हमारे जो मेंबर है वो है कांचन चौहान, मुत्तारमन, शशि रंजन सर, ज्योति साह और मैं खुद अरविंद कुमार सिंह। आज हम PMKSY और मनरेगा के साथ कार्यक्रम जो तमिलनाडु राज्य के श्रीमंगला खुर्शी गांव में हुआ है उसका प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और हम सभी ने मिलकर वो प्रेजेंटेशन को तैयार किया है। उसमें ज़्यादा सहयोग मुत्तारमन सर का रहा है, तो सर आप थोड़ा इसके बारे में जानें। Good morning to everybody of you. Second slide. Proposed here horticultural plantation with fish pond convergence with on 5 schemes. Horticultural plantation with fish pond. First activity is aligning, marking and digging up pits and live watering will be done in convergence with MNRGA. The horticultural plantation in the field. These works are done by MNRGA. Then seedlings and nutrients will be supplied by WDC PMKSY 2.0. There is provision there in WDC PMKSY 2.0 for horticultural plantation. Then drip irrigation to the seedlings will be done by convergence with horticulture department. The horticulture department is state department. We will get benefit from this. Then fish pond will be excavated in the field by watershed development WDC PMKSY 2.0. There is also provision to make fish pond in watershed activities. Poultry shed with poultry will be supplied by animal husbandry department, and then physical care will be done by the help of fisheries department. This is the proposal we made it. This is our model photos. This is drip irrigation photos. First photo pitting and planting. This is Goa and lemon seedlings. This is all our Chilmangaram watershed. This is fish pond with poultry shed. The budget estimation, the total budget is 2 lakhs. Horticulture plantation 30,000, micro irrigation 80,000, fish pond 65,000, poultry shed 20,000, and physical 5,000. Percentage, MGNRG 2.5%, horticulture department 40%, animal husbandry 10%, and fisheries department 2.5%. Among the total 100%, all 5 department may share the total funds. Desilting of pond, normally pond is maximum ponds are desilted because of Toothukudi district is predominantly situated with a black cotton soil, peculiar type of black cotton soil. The silting is more in that soil. So the tank is completely silted. Desilting will be done by PMKSY 2.0, and along the bund we use MGNRGA to plant tree saplings. Talk about convergence. There is two convergence modules are working there. One is construction of Anganwadi, and second is the construction of school boundary wall. Construction of Anganwadi में मोटामोटी 10 लाख estimated cost है. 8 lakh comes from मनरेगा and 2 lakhs comes from ICDS. And second the construction of the school boundary wall, ये square per meter पे इसका distribution किया गया है. There is 2 existing convergence modules are working in the Bihar. And if you talk about potential of the convergence, I have not write down here, but अभी हम लोग ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ जो है सो सिंचाई पे काम करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उसका अभी PMKSY में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. थैंक यू. As during the midterm evaluation of watershed by NIRD staff. This is the water in Tirumagara, the particular watershed. This is also Goa plantation. But if you propose convergence, they will. At the panchayat. Yes. हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग. हमारा ग्रुप नंबर 2 है. हमारे ग्रुप का नाम है महात्मा गांधी जी. ये ग्रुप का नाम हमने महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट करने के लिए रखा है. हमारे ग्रुप के मेंबर है के मधुलेट्टी सर AP, नोमान सर MP, अनुष्का मैम वेस्ट बंगाल, भगत राम सिंह सर राजस्थान, मोना दुबे मैम MP और मैं खुद सिद्धांत बाबरे महाराष्ट्र से. हमारे इस प्रोग्राम में हमने कन्वर्जन ऑफ PMKSY विद मनरेगा कि हमने इसमें वी राम जी के विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में हमने इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें सीखी है. इसमें से हम राजस्थान
सर का जो स्टेट है आंध्र आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। इस ग्रुप में हम PMKSY, मनरेगा और वी राम जी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ मैं मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर देता हूँ। मैं अगले मैम को बोल देता हूँ कि अपना सब चालू कर दिए। थैंक यू। So the convergence of PMKSY and MDNREGA mainly focuses on rural livelihood creation and water resource management. The MDNREGA mainly focuses on asset creation while also creating wage employment. While PMKSY mainly focuses on expanding the watershed development, water use efficiency, etc. So this convergence mainly focuses on increasing the agriculture productivity and also groundwater research and wage employment. So with this I conclude this and yes, आज हम अभिशरण के बारे में, उनकी चुनौतियों के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ अभिशरण के लिए मुख्य चुनौती और बाधाओं में संसाधनों का अपर्याप्त समन्वय, तकनीक और जटिलताएं और समय से पहले अभिशरण शामिल है, जहां प्रणाली समाधान खोजने से पहले ही रुक जाती है। अब इनकी कुछ चुनौतियां हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इनकी कमी, विभिन्न विभागों और संसाधनों या योजनाओं के बीच समन्वय का अभाव सबसे बड़ा अवरोध होता है, जिससे दौराव और संसाधनों की बर्बादी होती है। सेकंड, समय से पहले अभिशरण, जहां जनसंख्या बहुत अधिक एक गैर इष्टतम और समाधान पर आ जाती है और बेहतर समाधान खोजने की क्षमता को खो देती है। तीसरा, तकनीकी और डेटा संबंधी मुद्दे। फोर्थ हमारा है संस्थागत और तकनीक बाधाएं, विभिन्न सामाजिक प्रणालियों के बीच सहयोग, नैतिक और कानूनी मुद्दों के कारण बाधाओं का सामना। Respected Madam, Nitya Madam, and Senior Action Sir, PO Sir, PDO Sir, एवं अन्य पार्टिसिपेंट भाई और बहनों, I Bakram, we are presenting our presentation in this way. I have to put more mental efforts into speaking English, so I speak in Hindi in fully. About potential convergence, संभावनाओं को बताता है। मैं मतलब इसके अर्थ को इकोनॉमिक्स और एल्गोरिदम के आधार पे यहाँ बताना चाहूंगा। संभावित या प्रगतिशील योजनाओं और विभिन्न सरकारी विभागों में भौतिक पूंजी को ध्यान में रखकर उन्हें एकीकृत प्रणाली के द्वारा निवेश के आधार पर अधिक लाभार्थियों को फायदा प्रदान करते हुए एक सतत विकास वाली महत्वाकांक्षी रणनीति को हम पोटेंशियल कन्वर्जेंस की परिभाषा में शामिल करेंगे। इस प्रकार की रणनीति द्वारा तैयार प्लान से नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी एवं मूल्यांकन एक से अधिक विभागों और योजनाओं से जुड़े जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा की जाती है, जिसके कारण उपलब्धि की विश्वसनीयता बढ़ेगी, साथ साथ वैधता अवधि में विस्तार होगा। इस प्रक्रिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समुचित उपयोग करने से मार्ग में आने वाली समस्याओं का समाधान तुरंत हो सकेगा एवं नुकसान को नियंत्रित करने में हमें मदद मिलेगी। अतः कन्वर्जेंस का मतलब है कि एल्गोरिदम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां परिणाम स्थिर हो जाता है, यानी आगे इसका बदलाव असंभव होता है। चैलेंजेस और बोटलनेक्स फॉर कन्वर्जेंस, संस्थागत और प्रशासनिक बाधाएं, वित्तीय चुनौतियों, तकनीकी एवं कानूनी अड़चनें, कार्यान्वयन और परिचालन संबंधी समस्याएं, तकनीकी चुनौतियों, मानकों में अंतर, वेबसाइट डिजिटलाइजेशन प्रॉब्लम और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम, योजना डिजाइन और सूचना चुनौतियों, राजनीति और सामाजिक चुनौतियों, समाधान, ब्रेकिंग द स्लोस के बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक ऐसा जाल जिसमें विभिन्न मानसिकताओं के लोग शामिल होते हैं। तो
अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग मानसिकताएं एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाती है, उस समस्या को सिरोस करते हैं। उसको अगर तोड़ दिया जाए तो ये संभव हो सकता है। अब हम लोग जो है एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बारे में बताना चाहेंगे जो आंध्र प्रदेश के एक कलेक्टर महोदय ने पहल की है। राजस्थान निवासी एवं वर्तमान में आंध्र प्रदेश के अन्नामया जिला कलेक्टर श्री निशांत कुमार ने अपने प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय नेतृत्व का समन्वयकारी उपयोग कर प्रोजेक्ट जलधारा अभियान चलाकर माह जून 2025 से दिसंबर 2025 तक कुल मिलाकर जिले के डार्क जोन में जल स्तर को लगभग 8.7 मीटर तक ऊपर करने में सफलता प्राप्त की है। प्लानिंग के बारे में विस्तृत जानकारी। 6000 फीटों में से 4000 फीट चालू किए बिना किसी परियोजना बंद पड़े। पुराने बंद पड़े जलाशयों और फीडर चैनलों को जोड़कर जल उपलब्धता बढ़ाई गई। मनरेगा और जल संसाधन विभाग के समन्वय से 532 स्थानीय जल धाराओं को पुनर्जीवित किया है। सैकड़ों फार्म बाउंड बनाए हैं। अतिरिक्त जल को कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर पूरे जिले में संतुलित जल वितरण सुनिश्चित किया है। पानी कैसे बना पड़ा? 90% हिस्से में अब पानी 3 से 8 मीटर की गहराई पर उपलब्ध हो गया। 20,000 से अधिक बंद पड़े बोरवेल चालू किए गए। 6,000 में से 4,000 बंद पड़े फीडर चैनल पुनर्जीवित किए गए और 3,059 जलाशयों का संवर्धन जीर्णोद्धार किया गया। 962 मिनी सिंचाई टैंक पूरी क्षमता तक भर गए। पुलमपेट और कोनप्पा के टैंकों में 40-50 वर्षों में अब पानी आया है। 13.15 से बढ़कर 48.8 TSC हुआ। ये कुल सतही जल केवल 6 मंथ में इतना मतलब जो इन्होंने सफलता हासिल कर ली है। 6 मंथ ऑनली। कृषि बोरवेल पर कुल बिजली खपत में 30 से 40% की कमी हो गई। 20,000 हेक्टेयर बागवानी बढ़ी और 11,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्टेट जीडीपी अनुरक्षित की गई। इस प्रकार अन्नामया जिला डार्क जोन के आंकड़ों में 25 में से दूसरे स्थान पर सुधारात्मक प्रगति में शामिल हो गया है। थैंक यू। Our group name is We the Team. Actually, we are talking on convergence. Team is we are 5-6 people and from different states and different departments. तो ये सबसे पहला कदम ही अगर टीम है तो यही कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस का मतलब ही टीम है। तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम जसप्रीत है, मैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो शुरुआत है कन्वर्जेंस की वो होती कैसे है कि अगर मैं सभी को इंट्रोड्यूस करूँगा तो आई एम मतलब वो प्रोजेक्ट ओनर मान को मतलब जो हम पहले भी डिसाइड कर रहे हैं कि कोई एक बंदा ऊपर आके वो बोल रहा है, लेकिन वी द टीम हमने इसीलिए नाम रखा कि एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट एंड everyone should introduce himself. Please. Good morning, friends. Myself Anil Rathod from Karnataka. I'm working as Assistant Director of Agriculture in Agriculture Watershed Department. So, in detail, our friends will explain about convergence. Thank you. सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं नीता टाटीसार और हम लोगों का जो विषय है कन्वर्जेंस, ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मैं तो एक्सप्लेन हिंदी में ही कर पाऊँगी। हम एक दूसरे को समझ पाएँ और मिलजुल के जिस योजना पे हम काम करते हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए कन्वर्जेंस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। Good morning, sirs and madams. I am Era Swami, Technical Officer, Institutional and Capacity Building from PM CASY 2.0, Andhra Pradesh. We discuss about 3 group convergence. Good morning, friends. Ma'am, good morning. I am from West Bengal and Asbari Majis, working under WSRD Society. This is the presentation how we made from last
night. We are preparing and published it early. We made it will be success. Thank you. Hi, good morning everyone. My name is Bakar Harsh. I am agriculture officer from Karnataka. So today we are covering potentials of convergence. So we will start the topic from sir. थैंक यू द टीम। सबसे पहले एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड हिंदी मिक्स मैच चलेगा, मेरी हिंदी भी हिंदी चलेगा, मेरी पंजाबी आ जाएगी बीच में जरूर। पंजाबी चलेगा सर? चलेगा सर। पंजाबी गाना सुनते हैं हम लोग, गाना भी सुनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पिछले 4-5 दिन से कन्वर्जेंस है ना। तो बेसिकली कन्वर्जेंस है क्या, हमें उस चीज से शुरू करना पड़ेगा। मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स इन द टीम इज फ्रॉम ग्राम पंचायत एंड अदर डिपार्टमेंट्स। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए क्योंकि मैंने भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा। स्टार्ट करूंगा कन्वर्जेंस। एक्चुअली कन्वर्जेंस है क्या, या कन्वर्जेंस में हमें किस किस चीज को ध्यान रखना है, या उसका फ्लो क्या है। तो कन्वर्जेंस प्लान में सबसे जो पहला स्टेप है उसमें है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनिशियल रिक्वायरमेंट्स। कन्वर्जेंस तभी से शुरू हो जाती है जब हमको ना रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट है, कोई प्रोजेक्ट किसी लिए बनाया जाता है कि उस चीज की आवश्यकता है, उस चीज की जरूरत है, तो हम पहले सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि हमें चाहिए क्या। अगर मुझे चाहिए पानी की बोतल और मुझे कोई दे रहा रोटी, तो देयर इज नो मीन्स टू मी। ठीक है, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट देखनी है। फिर उसके बाद आता है एनालाइजिंग ऑफ वर्क्स, कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कोई एक प्रोजेक्ट करना है। लेट्स ऑन मैंने फूड प्रोसेसिंग का किया, तो मैं सोच के जाता हूँ कि मुझे कोई फूड प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट करना है। तो उसमें मेरे अलग अलग कंपोनेंट्स आएंगे, उसमें बिल्डिंग भी बनेगी, उसमें इलेक्ट्रिकल का काम भी होगा, उसमें मुझे पानी भी चाहिए होगा, उसमें मुझे प्लांटेशन भी चाहिए होगी, वो जो मेरा CSR करने के लिए उसमें मुझे एनर्जी भी लगेगी। तो मैं एनालाइज करूंगा कि मुझे क्या क्या काम एक्चुअली में क्या क्या काम करना है। क्योंकि मैं फूड प्रोसेसिंग देखता हूँ तो मैं जो ड्राइंग्स नहीं बना सकता, जैसे एक्शन साहब बैठे हैं, उन्हें पता है कि कोई बिल्डिंग कैसे बनती है, वो उनकी एक्सपर्टीज है, वो मुझे उनसे लेनी पड़ेगी। या मैं उनसे लूंगा, या मैं अपना एक टेंडर फ्लो करूंगा, उसमें अगर कन्वर्जेंस में मुझे नहीं जाना, मैं एक टेंडर फ्लो करूंगा, वो काम करवा लूंगा। ठीक है, लेकिन हम कन्वर्जेंस में जा रहे हैं तो हमें अलग अलग वर्क्स देखने की, कौन किस चीज की क्या एक्सपर्टीज है, उस एक्सपर्टीज को हमें समझना है। वो सारी एक हम मीटिंग रखेंगे। हो सकता है कि जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हो, मैंने लिखा हो कि इतने बाई इतने का मुझे एक शेड चाहिए, या इतने बाई इतने मुझे एक फ्लोर चाहिए है, तो मे बी आई एम रॉन्ग। तो मुझे वो सर बताएंगे कि नहीं, आप इस चीज को ऐसे नहीं, आप इसको थोड़ा ऐसे कीजिए, इसमें अपने जो कम फंड भी लगेंगे और अच्छी चीज भी बन जाएगी। ऐसे ऐसे इसकी हम लोग ड्राइंग रखेंगे, ऐसे टॉपोग्राफी रखेंगे, इस तरफ हमें गेट चाहिए, इस तरफ हमें लाइट चाहिए, इसकी वेंटिलेशन प्रॉपर कैसे होगी वो सर बता सकते हैं। मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसकी वेंटिलेशन का क्या जरूरत है। हाँ, मुझे इतना पता है कि मुझे वेंटिलेशन चाहिए, लेकिन वेंटिलेशन की डायरेक्शन क्या है, लाइट की डायरेक्शन क्या है, उस चीज को समझने के लिए मुझे सर की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे मैंने विंडो रख दी सामने, लेकिन लाइट मेरी आती है इससे इस तरफ, तो मेरे लिए वो कोई काम की नहीं है। सर मुझे बताएंगे कि नहीं, जस्ट इधर नहीं, विंडो होनी चाहिए इधर। मैं मतलब बहुत बेसिक से करूंगा, क्योंकि हम इसको बेसिकली कन्वर्जेंस तभी समझ पाएंगे कि है क्या। वो अपने अपने काम में बाद में हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। मैंने सर की जो इनपुट है उसको लेके फिर मैं उसमें चेंज करूंगा कि नहीं, ये चीज यहाँ पे नहीं, ये चीज यहाँ पे चाहिए, इसको यहाँ पे फिट करो। वो सभी जैसे एक मीटिंग होती है, जैसे हम मान लो कि एक मीटिंग कर रहे हैं, तो वो मैं नोट डाउन करूंगा और उसमें अपनी जो ड्राफ्ट DPR बनेगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, मैं उसमें लिखूंगा कि ये चीजें ड्यू डेलिब्रेशन हुई, हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद हमने ये चीज डिसाइड की है। जब वो एक ड्राफ्ट बने, अभी भी DPR एक ड्राफ्ट है, मैंने वो ड्राफ्ट बना दिया। फिर जो भी मेरे स्टेक होल्डर्स थे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जहाँ कोई हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट,
सेंट्रल ग्राउंड वाटर एजेंसी जो भी थे, मैंने उनको वो जो ड्राफ्ट डीपीआर है वो मैं शेयर करूंगा स्ट्राइक होल्डर में फॉर देयर रिव्यू। फिर वो उसमें रिव्यू देंगे कि इसमें ये चीज़ है, अगर ओके है तो ओके, अगर उसमें नहीं कुछ अलग चेंज है उसको मैं रिव्यू उनका लूँगा। और उसके बाद जो डीपीआर फाइनल डीपीआर बनेगी उसमें मैं डीपीआर बना के और जो भी कोई प्रोजेक्ट है उसको फिर मैं फ्रीज कर दूंगा। जब सभी आप लोगों के सभी स्टेक होल्डर के साइन लूँगा कि ये ठीक है, ये चीज़ होगी, उसको मैंने फ्रीज कर दिया। फिर जब फ्रीज होने के बाद लाइन वाइज काम चलेंगे। अगर मैं फूड प्रोसेसिंग का हूँ, मुझे मशीनरी के बारे में अगर पता है तो मैं मशीनरी वाले काम पे लग जाऊँगा। सर को अगर सिविल वर्क करना है वो सिविल वर्क वाले में लग जाएंगे। इनको अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पोल लेके आना है या दूर से लेके आना है तो उसके लिए ये अपने काम में अलग अलग डिपार्टमेंट के वो इनिशिएशन वो वर्क शुरू हो जाएगा। ये नहीं होगा कि मैं देखता हूँ कि सर जब बिल्डिंग बनाएंगे उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा, वो कन्वर्जेंस नहीं है। कन्वर्जेंस का यही मतलब कि उसको कैसे शॉर्ट टाइम में और मिलके काम करना, वही कन्वर्जेंस। अगर मैं देखता हूँ कि वो पूरा करेंगे फिर मैं करूंगा या मैं उनके कुछ काम में गलती निकालूंगा, वो नहीं। अगर मेरी टाइम पे मशीनरी आ गई, लेट्स सपोज कि मेरे 6 महीने मेरा लीव पीरियड है कि मेरी मशीनरी 6 महीने बाद आएगी, सर ने तब तक बिल्डिंग बना दी और मुझे कुछ 1 आधा फुट एक्स्ट्रा मेरा निकालना पड़ेगा, तो मैं ऑन द स्पॉट हम लोग वहां पे डिसीजन लेके उसको चेंज कर सकते हैं, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर पहले ही सारा स्ट्रक्चर बन गया, बाद में मेरी मशीनरी आई तो देन विल बी अ बॉटलनेक फॉर मी एंड हिम आल्सो कि आपने पहले प्लानिंग नहीं अच्छे से करी और मेरे लिए क्योंकि आके आपने सही से वो चीज नहीं की। इसके साथ साथ वो क्या चीज है, शॉर्ट टर्म मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन जरूर चाहिए। अगर कन्वर्जेंस है तो हमारा ह्यूमन नेचर है, जो मेरी गलती होगी मैं किसी और पे डाल दूंगा, दूसरे की गलती वो मेरे पे डाल देगा। तो शॉर्ट टर्म जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन वो जरूर चाहिए। वो आप मंथली वीकली, पहले तो वीकली चलता है, फिर आप उसको फॉर्टनाइटली कर लेते हो, फिर मंथली कर लेते हो, वो ऐसे सारी अपनी इवैल्यूएशन चाहिए। फिर मतलब कुशल मंगल से जो हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के बाद सबसे जो अहम दिक्कत क्या आती है, ऑडिट की। ऑडिट में ये चीज है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनको अलग अलग तरह से काम किया हुआ है, ठीक है। उसका ऑडिट करवाना बहुत जरूरी है कि जो आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है वो अच्छे तरीके। अगर मैंने ये 10 माइक खरीदे हैं या 5 माइक खरीदे हैं, मुझे एक राउंड टेबल ही चाहिए था, तो एवरीथिंग शुड बी वेल डिफाइंड इन माय पेपर, कि कोई आके ये ना बोले कि नहीं आपको राउंड नहीं, आपने इसको चौरस क्यों नहीं बनाया। 10 माइक की जगह पे 5 में भी सर सकता था। तो एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली। अगर आपका ऑडिट हो गया देन इट विल बी ओके। ये लास्ट स्टेप है कन्वर्जेंस का। तो इसके बाद मैं एक अपना जो मैंने प्रोजेक्ट किया था उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो फंडिंग थी वो हमने सारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ली थी। वो सारा सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम था, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के थ्रू हमने लिया था। तो उसमें बेसिकली था क्या कि अभी डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। हमारे पंजाब में जो है मोनोक्रॉपिंग चलता है, राइस वीट चल रहा है। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ फूड इंडस्ट्री है जो वो लगानी पड़ेगी, है ना। तो हमने लगाना था इंडिविजुअल बिग फ्रीजर, जो हम लोग फ्रोजन मटर और फ्रोजन कुछ भी फ्रोजन वेजिटेबल्स खाते हैं, उसका हमें प्लांट लगाना था। इट विल बी वो हमारा जो प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन था वो लगभग 85 CR का था। तो उसमें हमें सबसे पहले हमने किया था कि लगाना, पहले तो साइट कहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अपने 2 डिस्ट्रिक्ट के डीसी थे, एसडीएम थे जो उनके, तो उनके साथ मीटिंग किया। तो हमें उन्होंने ये चीज़ इंश्योर कर दी कि हम आपको ग्राम पंचायत की इस गांव में ग्राम पंचायत की जो लैंड है वो आपको लीज पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। देन जो हमारी सारी टीम थी, हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के बाद, तो ये डिसाइड किया कि अगर हम लोग कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि दाढ़ी नालों मुच्छां बढ़ गई हैं।
लीवर से ज़्यादा मूछ ज़्यादा बढ़ गई तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएगी, वो काम पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो फिर ये है कि करना कहाँ पे है। फिर जो हमारा ऑलरेडी एक गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी, फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री थी, हमने डिसाइड किया कि हमें उसी में करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास काफ़ी सारे जो रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। वहाँ पे जो बिजली आ रही है, पानी का कुछ पॉइंट आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिसाइड किया। And my best regards to respected Nitya ma'am, who well organized our 5-day training program, and I am also thankful to her because she have provided us to present our presentation before our group. And now I request all my fellows, all my group members to introduce yourself, herself, with your states. Please start. Hello ma'am. Myself Slojana Pawar. I am from Pandela, Madhya Pradesh. My name is Arul, Black Development Officer, Rural Development, Pallipattu Black, Tiruvallur District, Tamil Nadu. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दीपक बोराडे, मैं महाराष्ट्र का हूँ। Hi. Hello. Hi. Vanakkam. If I tell hi, then you have to tell hello. Hello. Okay? Yes. Hi. Hello. Hi. Hello. 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 Hi. If I tell hi, hello, then you tell hi. Hello. Hi. Hello, hello. Hi, hi. Yes. Myself Nathiyal Parchay. Actually, I am from Odisha. I am the master trainer of SID, and I am also working with the MSME department. So really, I am very much thankful to Madam also and everyone. And it is great privilege for me to be here. Thank you. सभी लोगों को नमस्कार। मैं लखनलाल गौर, SGI पचमढ़ी डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम MP से हूँ। ओके, थैंक यू आवर ग्रुप। मैम, हमने कोशिश किया है, हमारे ग्रुप ने कोशिश किया है कि एज पर योर डायरेक्शन, जो आपका डायरेक्शन होगा है उसी के अनुसार हम लोगों ने पॉइंट वाइज तैयार करने का कोशिश किया है। सम आर वर्किंग, सम आर येट टू बी वर्क, एंड bottlenecks and some our suggestion. तो फर्स्ट, मनरेगा वर्क्स रनिंग बाय कन्वर्जेंस मैन। अटेंटिव ऑल माय टीम मेंबर्स। मनरेगा वर्क में अभी बहुत कॉमन है, पूरे ऑल स्टेट्स में चल रहा है कि मनरेगा कन्वर्जेंस विद ICDS। मनरेगा ICDS कन्वर्ज हियर फॉर गोल ऑफ वर्किंग AWC आंगनवाड़ी सेंटर। इसका थीम क्या है? कॉमन है पूरे ऑल इंडिया में, एज पर एडवाइजरी ऑफ MORD। व्हाट इज इट? टेक्निकल सपोर्ट एंड एक्सक्यूशन विल बी डन बाय मनरेगा। आफ्टर दैट roof casting, etc. Financial support of ₹2 lakhs per AWC will be given to ICDS to our department मनरेगा। Now it is functional. जैसा कि मैम आप लोग के द्वारा बताया गया है, इट इज ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चूंकि एक तरह से एक टेक्निकल सपोर्ट मनरेगा का रहा, एग्जीक्यूशन रहा, अब फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। इससे सो दैट कि 40-60 का जो रेशियो हो उसको बियर करने में उस पे ये नहीं हो कि लास्ट में वो वायलेशन हो जाए। तो ये 2 लाख रुपया उस पर्पज से दिया गया, और ये बहुत सक्सेसफुली पूरा हम समझते हैं कि बिहार में तो बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। इसमें हर्डल हम लोग को यही आ रहा है लैंड्स का, जहाँ पे जमीन पे बनने को चालू होता है, कोई बोलता है ये मेरा जमीन है, ये मेरा जमीन है। हम लोग सर्विस होल्डर बहुत लड़ नहीं पाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ सपोर्ट मिला वहाँ पे तो एक्सक्यूशन के अंजाम तक पहुँचा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर सपोर्ट नहीं मिला तो सरकारी खूंटी गड़ा ही रह जाता है और वो एक्सक्यूशन नहीं हो पाता। दूसरा एग्जाम्पल मैम, मनरेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट, इट इज स्पेशली फॉर बिहार। ये हुआ पिछले साल 24-25 साल और 23-24 में हम लोगों ने करवाया। ये हम लोग
ऑलरेडी आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बाउंड्री जो है वो मनरेगा के परमिसिबल वर्क में, तो कुछ डीएम सर बहुत ही एक्साइटेड थे कि नहीं जी पहला काम करो स्कूल की बाउंड्री करो, सो डैट कि बच्चे सेफ हो जाए। बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, रोड के किनारे है तो बच्चे अगर बाहर आ गए, एक्सीडेंट हो गया, प्लस बच्चे भाग न जाएं, तो ये बहुत ही अच्छा काम है, ये एक करो। तो हम लोगों ने बहुत काम इसमें मैम करवाया मनरेगा से। तो बाद में फिर हाई लेवल पे इसमें मीटिंग हुआ और इसमें कहा गया कि नहीं एजुकेशन चूंकि बहुत लोड बढ़ जा रहा था, एक जिला में 150-200 स्कूल की हम लोग बाउंड्री करा रहे थे, बड़ी बड़ी बाउंड्री थी, 20 लाख 25 लाख की भी बाउंड्री थी, मटेरियल कॉस्ट बहुत भाग रहा था। तो अल्टीमेटली डिसीजन किया गया कि नहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसमें आपको फाइनेंशियल फंड फ्लो करेगी। तो इसमें डिसीजन हुआ टॉप लेवल से कि मोटा मोटी 1,500 रुपये पर रनिंग थी, यानी हम लोग जो बाउंड्री वॉल बना रहे थे, कैपिंग कर रहे थे, कैपिंग के ऊपर 6 फीट ब्रिक वर्क कर रहे थे, तो इसका कोपिंग कर रहे थे, प्लास्टरिंग कर रहे थे। तो अगर 100 फीट वो बनाएंगे तो 1.5 लाख रुपया हुआ, 1,500 रुपये प्रति रनिंग फीट के हिसाब से फाइनेंशियल सपोर्ट वो लोग किए। उनके द्वारा जो है स्कूल का लिस्ट दिया गया, ये स्कूल में काम करना है। फर्दर सिक्योर से हम लोग के द्वारा डीपीआर बना करके इसका एक्सक्यूशन किया गया। आफ्टर एक्सक्यूशन हम लोगों ने यूटिलाइजेशन दिया उनको, उसके आधार पे ये पैसा दिया गया। ये भी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल कन्वर्जेंस। तीसरा जो है अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये मनरेगा और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। ये बिहार में बहुत कैनाल है, इसमें आप देखेंगे कि वो गंडक नदी का कैनाल का जाल बिछा हुआ है, सोन कैनाल है, दो बहुत, और उसी के बल पर जो है बिहार की जमीन जो है बहुत फर्टाइल है, पैडी क्रॉप बहुत अच्छा एल्ड होता है, एक कट्ठे में 4 टन तक होता है, एक जिला 1 मिलियन टन भी उपज कर रही है। और अगर पानी बारिश कम भी होता है तो बिहार में जो है साउथ बिहार में पैडी क्रॉप बहुत बढ़िया होता है। तो ये क्या हो गया है कि सिल्टेशन हो गया है। व्हाट इज कैनाल? 2 तरह का कैनाल होता है, एक नेचुरल कैनाल जिसको पाइन वगैरह हम लोग बिहार में बोलते हैं, छोटी नाला बोलते हैं, और एक हो गया मैनमेड कैनाल। ये मैनमेड कैनाल मान लीजिए बैरेज से, वहां से वो निकलेगी और डिफरेंट उसका होगा, मेन कैनाल, हाईहेड कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, और लास्ट में वो छोटा सा 20 क्यूबिक फीट पर ये सेकंड से नीचे आ जाएगा, वो खेत में वो मर्ज कर जाएगा। तो इसका क्या होता है, फिक्स प्रोफाइल होता है, इसकी जो है बेड स्लोप सारा फिक्स होता है। ये बहुत दिन से 50-60 साल से वर्क करते करते सिल्टेशन हो गया है। इसका डिजाइन ऐसा करना पड़ता है लेसिज डिजाइन थ्योरी से, सो डैट कि अगर ज्यादा उसमें गड्ढा कर देंगे तो क्या होगा, डिसिल्टेशन होगा, गड्ढा हो जाएगा ज्यादा, बहुत तेजी से मिट्टी का क्षरण हो जाएगा, और अगर कम करेंगे बहुत स्लो हो जाएगा वाटर का फ्लो, तो क्या होगा, सिल्टेशन हो जाएगा वहां पे। जैसे कि वो इसमें अगर आप मिट्टी डाल दे, हिला के छोड़ दे तो बैठते जाएगा, कम फ्लो रहेगा। तो इसीलिए उन लोगों का डिफाइंड प्रोफाइल है, उसी के अनुसार कम करना होता है। तो डिसाइड किया गया कि सारा मनरेगा क्या करेगा, युक्त धारा पे योजनाओं को एंट्री कर देगा, और उसके बाद में एंट्री करने के बाद वो सारा एस्टिमेशन का काम और एक्सक्यूशन का काम WRD वाले करेंगे, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट करेंगे, और इसमें हाजिरी का वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे वो WRD वाले करेंगे। ब्लॉक से इसका EMR निकाला जाएगा। आफ्टर दैट एस्टिमेशन से लेकर के TS देने तक और उसका वेरिफिकेशन तक ये सारा काम WRD वाले करेंगे, और FTO फॉर्मेशन का भी काम करेंगे WRD वाले, और नेक्स्ट पेमेंट का काम करेंगे डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर करेंगे।
तो ये टेक्निकल कन्वर्जेंस का अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट डन बाय WRT एंड फाइनेंशियल मनरेगा। ये काम, ये 3 काम जो है, 3 ही काम लिया है, काम तो ऐसे बहुत है। तो ये मनरेगा वर्क्स रनिंग ऑन कन्वर्जेंस। आफ्टर दैट पोटेंशियल कहाँ है, अवेलेबल पोटेंशियल ऑफ कन्वर्जेंस इन मनरेगा। इस पे हम लोगों ने 2-3 वर्क पे हम लोगों ने प्रकाश डालने की कोशिश किया है। पहला है नंबर 1 मनरेगा फिशरीज मखाना बोर्ड। अभी आप लोग सुने होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ मखाना बोर्ड का गठन किया है, बजटरी अनाउंसमेंट हुआ है। मिथिला में क्या वो मिथिला में पानी में होता है ना, तो ये बहुत ही मतलब वर्ल्ड लेवल का चीज है। जियो टैगिंग इसको दिया गया है और वर्ल्ड में अगर बेस्ट मखाना नॉर्थ बिहार में ही होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या स्कोप है, मनरेगा से तालाब बना दिया जाएगा। अगर इसमें टैग कर देंगे फिशरीज विभाग से, उसका फिश का बीज डाल दिया जाएगा मछली पालन के लिए, और इसमें मखाना का खेती भी हो सकता है। तो ये मखाना बोर्ड के द्वारा फिशरीज डिपार्टमेंट और मनरेगा, ये 3 विभाग के द्वारा फिश का प्रोडक्शन भी हो जाएगा और मखाना का प्रोडक्शन हो जाएगा। और ये मतलब दिस इज द मिक्स्ड फॉर्म ऑफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कन्वर्जेंस। इस तरह से और भी इसके विभाग जुड़ सकता है, लेकिन इसका 3 का स्कोप है मैम। इसको मैम थोड़ा प्लीज देखा जाए, सो दैट यहाँ से अगर एडवाइजरी आप लोग देते हैं तो फिर काम चालू होता है। दूसरा जो है प्रपोजल मेरा है मनरेगा प्लस एनिमल हस्बेंड्री। इसमें हम लोग पार्शियल काम किए थे कोरोना के पहले। ये क्या है, मनरेगा से हम लोग बना दिए इसमें। तो लास्ट में हमें मौका मिला कि कन्वर्जेंस पे कौन से स्कीम है जिसको अभी हम लोग ने टच नहीं किया। तो बेसिकली हमने 2 टाइप का स्कीम लिया, एक तमिलनाडु से मिस्टर प्रभाकर, राइट, मिस्टर पावर पॉइंट। So I am giving the mic to Prabhakar so he can explain what is happening in Tamil Nadu. So he is very expertise and he has done the work. So please. This one is convergence work. Individual works means the farmer drying his chilies in plain ground. They attain some quality effects, quantity effects, and income effects. The convergence works. Next slide. We are constructing a threshing yard by convergence. This is the common land. This by MNREGA है, मनरेगा. The cost for laborers are engaged by मनरेगा, and materials and finance engaged by the PMKSY. This is the impact. Impact means quality best, quantity best, and farmers' incomes are increased. Next. This is the benefits. Individual land. This is before the work. This the jungles are removed by MNREGA. These works are done by PMKSY. After completing the works, impact of the tank is filled with rainwater. By using this oil engine is hired from agriculture department through pipelines. Next. The horticulture plantation seeds are collected from horticulture department.
nowadays his incomes are also increased. Next. This is the video. Next. This is video? Yes. Comment. I says, without convergence, me, I am also me. With convergence, we are also in a family. Simple. Thank you. हम हैं वो कन्वर्जेंस है, मैं हूँ वो कन्वर्जेंस नहीं। This is individual. But you are telling this is individual, we are Indians, but when it comes to murder in Tamil Nadu, you are always Indian. Not in Tamil Nadu. Single state. In a single state, always single. We are Indians. See, converse together. Converse. Okay. Yes, we can understand. As we are the last group, we thought all the groups will cover all the conceptual understanding of the convergence. So we have prepared one convergence of schemes. How can we use different schemes and make an integrated system which will increase the farmers' income? From Manrega scheme, we can use it for the jungle clearance or a community common land. From PM-KSY, we can use it for the pond formation or digging of pond, which can be useful for the fisheries. And from the agriculture department, we can borrow the agriculture seedlings, which can be useful for the farmers. And the horticulture department can provide us the fruit plant seedlings. And the agriculture marketing team, we can form the FPOs and collect the farmers' produce and send it to the market. So it will help, it is a model for convergence. So it will increase the income in every sector, like agriculture sector or horticulture sector, and additional income will be provided to the farmers. And another potential work which can be done in the Madhya Pradesh as well as Tamil Nadu. So PM Sadak Yojana is one scheme which can be converged with the Manrega, and the material component we can opt from the PM Sadak Yojana, and the labor convergence can be done through the Manrega work. ये बहुत अच्छी बात है। अगर डामरीकरण रोड ग्रामीण विकास में पंचायती राज और हमारी जो क्या बोलते हैं ये स्कीम्स में अगर शामिल कर दिया जाए ना तो ये सक्सेस हो जाएगा। डामरीकरण है नहीं। The government is also emphasizing, right? आज At the grassroots level, when they prepare with the GPDP also, they can plan all these schemes. What are all the schemes are existing schemes and how they can converge with the different schemes. Yes, ma'am. There is a unique convergence. Actually, there are 6 departments involved. 6 departments, line department can be converged in one. Because in watershed areas also livelihood enhancement to the FPOs, like FPO formation needs to be happened in the watershed areas. That is another convergence. एक्चुअली मेरे पंजाबी भाई साहब ने काफी समय लिया और काफी प्रभावित था मैं, तो मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। मैं भी थोड़ा समय ले रहा हूँ। एक्चुअली माय पास्ट एक्सपीरियंस वाज दैट मैम देयर इज वन प्लांट इन करंज। आई थिंक एवरीबॉडी नो करंज। मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे गर्मी इतनी पड़ती है कि मिनिमम 100 बिल्कुल वो धरती की गर्मी से उनकी डेथ होती है। डायरेक्ट सनलाइट से नहीं, वो धरती गर्म हो जाती, इतनी गर्म होती। हाँ, जो ग्लोबल वार्मिंग है उनसे ये पता नहीं लोगों को चल पा रहा था। तो एक XLRI के स्टूडेंट से, XLRI जमशेदपुर मैनेजमेंट लड़का था, वो आप ही के जैसा दाढ़ी भी रखता था, ठीक है। तो उसने आया और उसने प्रेजेंटेशन दिया कि गया में ये जो पौधा है करंज यही सर्वाइव कर सकता है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे बंदना क्रेसी मैम, तो काफी मीटिंग हुई। उसके बाद कहा कि लगाना है। तो एक हमारा जूनियर इंजीनियर था, उसने हमसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन काफी बड़े अमाउंट में ले लिया कि मैं ये लगा दूंगा। मैंने देखा नहीं था। वो एक्चुअली रिवर बेल्ट है, प्योर रिवर है, जहाँ पे मालूम है कैसे सर्वाइव कर पाएगा, इतनी गर्मी पड़ती है।
मैं जब देखने वहाँ गया तो मैं जितने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन किया था, मैंने प्रशासनिक स्वीकृति दिया था, वो सारे फाइल को मैं अपने अलमीरा में रख दिया, क्योंकि कल वो हो सकता है स्कैम हो जाए, मैं मना कर दूं कि मैंने इसका प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद बाढ़ आ गया तो लोगों ने कहा वो तो पौधा लगा था वो तो डूब गया, क्योंकि फ्लड आया तो डूब गया। तो मैं डर से स्टूडेंट इंजीनियर साहब मैं देखने नहीं गया। आफ्टर ए वीक मैं देखने गया तो उसमें जो गर्मी में पौधा लगाया था बिल्कुल मर गया था, उसमें पत्तियां आना शुरू हो गया और पत्तियां आना शुरू हो गया तो मैंने फाइल जो है हैंड ओवर कर दिया कंसर्न पर्सन को कि ना यू कैन बिगिन द सीन। उसके बाद जो थोड़ा बड़ा हुआ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग आए कि कैसे नदी में पौधा बड़ा हो सकता है, बेसिकली करंज का था। उसी समय जो हमारा जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल बिहार का मांझी जो शुअर पालन करते हैं, इनको लोग मुशहर भी करते हैं, नदी के बीचों बीच वो ले गया, कहा कि सर एक चीज और देख लीजिए, मैं यहाँ पे गुआवा लगाया नदी के बीचों बिल्कुल होता। तो हम लोगों ने कहा पानी कहाँ से लाया, तो एक अधा पेड़ एक्चुअली ला के ना काफी बड़े प्लांट कर दिया था, उनके बगान था। मनरेगा से हमने उसको लिया, स्कीम को लिया, उनको मदद के लिए वहाँ हैंड पर किया, उसको हमने मनरेगा के लिए दिया। उसके बाद ग्रीनरी नहीं थी वहाँ पे, हमने लगभग 1.5 लाख पौधे जो है सिर्फ और सिर्फ करंज का लगाया और नदी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक हमने टच कर वाले ने डॉक्यूमेंट्री बनाया। और सबसे बड़ी चीज हुआ कि बालू नमा काफी था, वहाँ हैंडपंप भी कुछ आ गए, तो वहाँ पे लौकी के सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजेश मिश्रा और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। और जैसा कि सभी ग्रुप के माध्यम से अच्छी तकनीक बताई गई और कुछ उदाहरण भी पेश किए गए हमारे सामने, तो स्लाइड देख के हम उसको समझ पा रहे थे कि काफ़ी अच्छा काम हुआ है कि वाटर कंजर्वेशन के लिए मध्य प्रदेश में जो अभी काम चल रहे थे पिछले साल जो मार्च से जलगंगा संवर्धन कार्यक्रम शुरू हुआ था हमारे यहाँ पे, तो सर 90 दिन का प्रोग्राम था पूरा जलगंगा संवर्धन कार्यक्रम का। तो पूरे 90 दिन हर जगह हर ब्लॉक और हर गांव पे मतलब गतिविधियां हो रही थी। इसके अंतर्गत जैसे कि जो जल स्रोतों की सफाई वो भी उसके अंतर्गत था, कुआ बापड़ी जो सूखे पड़े हुए थे उनकी सफाई की गई एनजीओ के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से। और उसके अलावा बोरी बंधन कार्यक्रम किए गए, तालाब निर्माण किए गए और खेत तालाब योजना के अंतर्गत तालाब भी बनाए गए, है ना। ये मनरेगा के तहत ये भी काम हुआ था जो खेत तालाब योजना के अंतर्गत, तो बलराम तालाब के अंतर्गत अभी नई योजना निकाली थी मध्य प्रदेश सरकार ने। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिले में और सभी ब्लॉक में बराबर काम हुआ, जिसमें प्रशासन और जो कंजर्वेशन की बात आ रही है, जिसमें एनजीओ के साथ मिलकर शासन और प्रशासन सभी एक साथ लग के ऐसे काम किए थे कि कुछ काम तो मैडम जन सहयोग के माध्यम से हुए, तो उसमें पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ी कि बोरी बंधन कहीं बनाना है कहीं सफाई करना है, तो उसमें कोई रुपए की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब एनजीओ लोग आकर के और सफाई कर गए या उसको बोरी बंधन बना गए। तो यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार का एक एनजीओ है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, तो उसके माध्यम से हर ब्लॉक में उसके स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो भी उनके माध्यम से भी गतिविधि मतलब प्रॉपर की जा रही थी। और अभी भी बोरी बंधन कार्यक्रम हर जगह किए जा रहे हैं। तो छोटे छोटे बोरी बंधन जैसे कहीं खेत है या नाला है छोटा, उसको पानी को टैंक के माध्यम से रोक करके थोड़ी कम समय के लिए मतलब रोक करके स्लो, जैसे कि कल सर के माध्यम से स्लाइड में बताया गया था कि पानी को बहाव को कम करके भी अपन वाटर कंजर्वेशन को थोड़ा अंदर जमीन में जाए, उसके बाद फिर रह जाए आगे चल के। फिर ऐसे करके छोटे छोटे डैम बोरी बंधन या डैम कर सकते हो, तो उनके माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से मतलब काम किया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करूँगा और इसके बाद सर बोलेंगे तो हो गया। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से मास्टर टेलर। जैसे कि अभी ग्राउंड वाटर पर मैडम बात हुई, तो मैं बताना वो पेन ड्राइव किसकी थी वो वहाँ से मालूम से गांव में हमने एक प्रैक्टिकल किया था ग्राउंड वाटर को लेके एसएचजी की दीदियों के साथ। वो ये था कि उस गांव में ये दिक्कत थी कि जो उनके घर का पानी था नहाने का वो रास्ते में आता था और रास्ता खराब हो जाती थी, और वहाँ पे वाटर लेवल इतना ही कम था कि कोई भी एनजीओ काम करने के लिए तैयार नहीं था किसानों के साथ। तो जब भी वहाँ पे हम जाते थे तो वो हमसे ही पूछते थे गाँव वाले कि क्या हो सकता है सर, हमारे गाँव का कुछ हो सकता है क्या। तो
क्या हुआ कि हमने छोटा सा एक प्रैक्टिकल किया सभी दीदियों के साथ, जो वहाँ की वीओ की और सीएलएफ की जो दीदी होती हैं उनके साथ हमने बोला कि जो पानी बहता है इस पानी को सबसे पहले गड्ढा बनाते हैं, पेड़ लगाते हैं चारों साइड और इसको अपने घर के अंदर ही अपन सोखते हैं। तो ये करते हुए हमने सब लोगों ने एक मुहिम चलाई और हमने एक लोकल पे हमने अर्थदंड भी एक प्रावधान किया लोकल में बैठ के सरपंच जी के माध्यम से मिलकर। तो क्या होता है कि वो गांव में कुछ समय के बाद वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफी हद तक ऊपर आ जाता है। जो नल अप्रैल में बंद हो जाते थे हैंडपंप, वो मतलब कंटिन्यू रहने लगे। एक बहुत मतलब प्रैक्टिकली